Okay, now turn your Bible to 2 Thessalonians 3rd chapter verse 3. दूसरा थिस्सलुनीक तीसरा अध्याय तीसरा वचन की ओर हमारा बाइबल को फिराएंगे। This is our New Year promise. ये हमारा नया साल का वायदा है। But the Lord is faithful, who shall establish you, keep you from evil. परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। Say to me, my God is faithful, who will establish me, who will protect me from evil one. मेरे खुदा विश्वास योग्य है, वो मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। No movements. Because can you call those two boys, Abhishek and Nikhil, ask them to come and sit inside. Tell them. Now listen. यहाँ पे सुनिए, Word of God is very important. You need to attend with absolute attention. और परमेश्वर का वचन बहुत ही मुख्य है। जब आप सुनते हैं तो बहुत ही ध्यान से आप सुनना चाहिए। Abhishek, come inside. Nikhil, come inside. Why you are going out? Come friend. All of you come friend. Come here. Come here. Why you want to go when the word of God starts, Abhishek? Okay, now listen. अभी सुनिए, Okay, let me get. See, this promise, we have to get a revelation. ये वायदा का प्रकाशित वाक्य हमको मिलना We चाहिए। have to understand it. हम इसको समझना चाहिए And we have to apply it in our day-to-day life. और ये हर दिन का जीवन में इसको हम उपयोग कर लेना है, इस्तेमाल कर लेना है। That is why every week I am teaching it again and again. इसीलिए मैं हर हफ्ता बार बार इसको बोधना कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The first part says, the Lord is faithful. पहला उसका भाग कहता है खुदा विश्वास योग्य है। Say, my God is faithful. मेरे खुदा विश्वास योग्य है। Even if we are faithless, we are unfaithful, still He remains faithful. अगर हम विश्वास योग्य नहीं तो भी फिर भी वो विश्वास योग्य ही रहता है। He is faithful to fulfill every promise in your life. और वो विश्वास योग्य है कि आपके जीवन में हर एक वायदा को पूरा करने में। Thousands of promises are there. हजारों वायदा है। All these promises will become real because God is faithful. ये सारा वायदा वो सच्चाई में होता है क्योंकि खुदा विश्वास योग्य है। Hallelujah. Hallelujah. So every day we should get up and say, my God is faithful. तो इसीलिए हम हर दिन उठ के बोलना चाहिए मेरे खुदा विश्वास योग्य है। Maybe what you see with your eyes, your challenges, your problems may be too big. शायद हो सकता है जो आपके आंख से आप जो देख रहे हैं, जो सवालों को, जो समस्याओं को, शायद आपको हो सकता है कि वही बड़ा दिख सकता है आपको। Maybe you think now everything is over, nothing is possible. शायद हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे होंगे अब कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ हो गया है, कुछ भी नहीं होने वाला है बोल You के lost all hope. सारा जो आशय रखने का आप छोड़ दिए होंगे। I have a good news. लेकिन मेरे पास शुभ संदेश है, God is faithful. खुदा विश्वास योग्य है। Hallelujah. Hallelujah. That's why Bible says, इसलिए बाइबल कहता है Sarah's womb was dead. और सारा का जो गर्भ वो मरा हुआ था, She received strength और to conceive a child. और वो शक्ति पाले के वो बच्चा पैदा होने के लिए वो गर्भवती होती Because है she considered God is faithful. क्योंकि उन्होंने खुदा को विश्वास योग्य ठहराया था। इसलिए Now we have to do so many things from our side. हमारे तरफ से हम बहुत सारी विषय करना है, But the priority or the prime responsibility of your life is in God's hand. लेकिन
आपके जीवन का पहला मूल्य, आद्यता और वो जिम्मेदारी वो खुदा के ऊपर है। He is interested in your life. आपके जीवन के लिए बहुत ही आसक्तित है He is faithful. और वो विश्वास योग्य है। He is faithful to forgive your sins. वो विश्वास योग्य है कि आपका सारा पाप क्षमा करने में। Hallelujah. हालेलुया। Then the next part I am teaching. और दूसरा भाग मैं बोधना कर It रहा says, हूँ, who shall establish you? और वो दृढ़ता से स्थिर करेगा बोल के। Say, this year my God will establish me. इस साल में मेरे खुदा मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा। Our God is a God who establishes his children. जो हमारा खुदा है वो खुदा उनके बच्चों को दृढ़ता से स्थिर करने वाला He है। establishes them in his plan and purpose. उनको वो इसमें स्थिर करता है कि उनका योजना क्या और उद्देश्य में, His plan is always big. और उनकी योजना कभी भी बड़ा ही रहता है। That's why we have to make sure our soul prospers. इसीलिए हमको ये सही कर लेना है, पक्का कर लेना है कि हमारा मन, हमारा प्राण वहां पे उन्नति में आना Our बोल के। mind thinks like the world. हमारा मन ये संसार की तरफ वैसा सोचता है। Our mind should think like God. हमारा मन खुदा के जैसा वो सोचना चाहिए। So to establish you, he needs your cooperation. और वो स्थिरता करने के लिए आपकी सहयोग उनको चाहिए। So I have given you, that goals you have to write. मैं आपको दिया था वो जो लक्ष्य लिखना है बोल को आपको। If it is not there, it is available in YouTube also. अगर आपके पास वो YouTube में है, And I make sure people call you and write the goals. और मैं ये भी कर रहा हूँ कि लोग आपको फोन कॉल करके वहां पे पक्का कर लेना, हाँ आपको लिखना है लक्ष्य। You should write goals. आपको लिखना है क्या क्या लक्ष्य आपको लिखना है वो। Tell your neighbor, you should write goals. आपके बाजू वालों को बोलिए आपका लक्ष्य को आप लिखिए बोल। This year, what is a goal for me in 2022? और 2022 का ये साल में मेरा लक्ष्य क्या क्या है वो। So there are 4 things there. वहां पे 4 विषय है। Number 1, it's about my life. Personally, what is your goal? पहला उसमें मेरा जीवन के बारे में है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे क्या है, क्या चाहिए। Personally, I told, write about your prayer time, write about your Bible reading, write about your hobbies, write maybe you are interested in music. Keep a goal. This year I should learn. This year I should play. This year I should write exam. Like that, keep some goals. मैं आपको बोला था कि जो बाइबल पढ़ने का और प्रार्थना करने का समय के बारे में लिखिए, और आपको क्या क्या आदतें हैं उसके बारे में लिखिए, और संगीत के बारे में लिखिए। इस साल में अगर नहीं सीख रहा तो आप इस साल में सीखना चाहिए ये संगीत ऐसा आप लिखना बोलकर बोला You था। write daily 5 chapters. I'll write it. अगर आप हर दिन 5 अध्याय आपको पढ़ना है बाइबल बोले तो 5 अध्याय बोलकर लिखना है। Minimum 5 chapters. Okay. कम से कम 5 अध्याय। You write it, you will do it. अगर वो आप लिखे तो आप करते हैं, If you don't write, you will not do it. अगर आप नहीं लिखे तो आप वो नहीं करते। I should read some books. मैं एक अलग अलग सब बुक्स पढ़ना है, Like that, write it. ऐसा आप लिखिए। About your career. आपके करियर के बारे में Write it. वो लिखिए। This year, if you are a student, I should get this much percentage marks. अगर आप विद्यार्थी है तो इस साल में मैं इतना परसेंटेज मुझे आना बोलकर लिखिए। I should be a topper in the class, topper in the school, topper in the university, topper in the state. Write the goal. और वहां पे वो लक्ष्य में लिखिए कि ये साल में मैं मेरा स्कूल में मैं ऊंचा पद पर रहना चाहिए, मेरे कॉलेज में, और मैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी में हूँ वहां पे पहला ऊपर मेरा नाम ही रहना बोलकर ऐसा लिखिए। The goals, what you write is between you and God. No need to show me, no need to show anybody. जो कौन सा लक्ष्य को आप जो लिख रहे हैं वो आपसे और खुदा से ही लेना देना, मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बताना नहीं है। If you work in your life first, अगर आपके जीवन में आप पहला काम करें तो then the career becomes easy.
तो उसके बाद जो वो करियर है वो बहुत ही आसान होता है। And set some goals for family. Yeah. और आपके परिवार के लिए कई लक्ष्यों को लिखिए There's रखिए, nothing wrong. उसमें कुछ गलतियां नहीं है। There is nothing wrong. You buying a property or buying gold. There is nothing wrong. और आप वहाँ पे जमीन और जगह खरीदने में और सोना खरीदने में कुछ गलती नहीं है, आप लिख सकते हैं। Some people said, what is the point in buying gold? What is this? All the things is not needed. Only souls. कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं क्या सोना चाहिए, क्यों सोना चाहिए, वो सब नहीं चाहिए, हमको खाली आत्माएं चाहिए बोलते हैं। That is foolishness. वो मूर्खता है। Hallelujah. हालेलुया। That's why Apostle John says, beloved, I wish you above all, you may prosper, you may be in good health as your soul prospers. इसीलिए कि अपोस्तल यूहन्ना कहता है कि मेरे प्रिय भाइयों, जैसा तुम प्राण का उन्नति, आप जैसा आप उन्नति पाते हैं, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, आपका प्राण उन्नति में आना बोलकर कहता You है। should prosper, you should have a good health. आप उन्नति में आना चाहिए और आप चंगाई में रहना चाहिए। You should have money in your hand. आपके हाथ में पैसा रहना You should be चाहिए, healthy. आप तंदुरुस्त में रहना चाहिए, Only then we can do ministry. तब भी आप सेवकाई कर सकते हैं। I'm not saying don't do ministry. मैं नहीं कह रहा हूँ सेवकाई नहीं करना बोल That's के। why one column ministry also is written. इसीलिए उसके अंदर एक कॉलम में सेवकाई बोलकर लिखा है। Ministry, it's not your individual. You should do as a family. और ये सेवकाई आप अकेला नहीं करना है, आप पारिवारिक होके करना है। Hallelujah. Hallelujah. Okay, how to set goal? और कैसा लक्ष्य को रखना है, Very simple. बहुत ही आसान है। Bible says बाइबल कहता है in Philippians 2:13, फिलिपियों का 2 अध्याय 13वें वचन में, God puts desire in our hearts. और खुदा आशा को हमारे दिल में डालता है, He is working in us. और वो हमारे अंदर काम कर रहा है, He puts a desire. और वो आशा को डालता है, He gives us the ability to do it. और वो करने में हमें सामर्थ्य देता है। Certainly, my Father puts a desire in my heart. He is working in me, and He is giving me the ability to do it. मेरे खुदा मेरे अंदर आशाओं को डालता है और मेरे अंदर काम करता है, वो करने के लिए सामर्थ्य देता है। So if you accepted Jesus, if you are a righteous person, God puts a desire. अगर आप यीशु मसीह को अपना लिए तो, अगर आप धर्मी है तो खुदा ही आपके अंदर आशाएं डालता है। That desire is a good desire. और वो आशाएं, वो अच्छा आशाएं रहता And है। the desire shall be granted. आपका आशय बाइबल वो कहता है कि वो हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So in your goals, if you आपके- don't know what to write, अगर आपके लक्ष्य में क्या लिखना बोलकर अगर आपको जानते नहीं है तो write your desire. Write your desires. और आपके आशाओं को लिखिए। This year it should happen to me. My son should be like this. My daughter should be like this. I should be like this. Write your desires. ये साल में मुझे ऐसा होना चाहिए और मेरे बच्चों को ऐसा होना चाहिए और मेरा बच्ची को ऐसा होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए बोलकर लिखिए। And when you write the desire, कब वो आशाओं को लिखते हैं, besides that, write one quotation from Bible. और उसके बगल में बाइबल का एक वचन को लिखिए। Hallelujah. हालेलुया। Very important. Your desire should be from the word, based on the word of God. आपकी आशाएं परमेश्वर के वचन के ऊपर ही रहना चाहिए। That is why Jesus said इसलिए यीशु मसीह ने कहा है in John 15:7, यूहन्ना का रचित सुसमाचार 15वें अध्याय 7वें वचन में, if you abide in me अगर आप मेरे अंदर है तो, and my words abide in you, मेरा वचन आपके अंदर है तो, you shall ask what you desire, it shall be done unto you. आपको कौन सी आशय है वो पूछिए, वो आपके लिए हो जाएगा। Now, if you read New King James Version, the word desire is mentioned. और न्यू किंग जेम्स वर्जन में अगर बाइबल आप पढ़े तो उसमें आशय बोलकर लिखा है। So, your desire, you should pray. और आपकी आशाएं के लिए आप प्रार्थना करना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Say, I pray for my desire. मेरे आशाएं को मैं प्रार्थना करता हूं।
So whatever you desire, pray, believe you receive it, then you will have it. और कौन सा भी आशाएं आपको है तो आप प्रार्थना करिए, विश्वास करिए कि मैं पाले चुका हूं बोलकर वो आपके लिए हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. That's what Mark 11:24 says. वो ये मार्कुस का 11वें अध्याय 24वें वचन में कहता है। Say, whatever I desire, I pray, I believe, I received it, then I will have it. जो कुछ भी मैं आशा रखता हूं उसके लिए प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं कि मेरे लिए वो हो गया है बोलकर मुझे वो हो जाएगा। You should have a desire about healthy life. Write it, healthy life. आपको आशय रखना है कि आपको तंदुरुस्ती का जीवन जीना है बोलकर आप तंदुरुस्ती का जीवन जीना है बोलकर लिखिए। Right. और वो लिखिए, This year no one should fall sick in my house. ये साल में मेरे घर में कोई भी बीमारी में नहीं पड़ता बोल Write के। the quotation. और उसके बगल में वचन लिखिए। If you fall sick, don't worry. अगर आप बीमारी में पड़े तो चिंता मत करिए। If you fall sick, अगर आप बीमारी में पड़े तो take the desire and pray. और वो आशाएं को लेके आप प्रार्थना करिए। Hallelujah. हालेलुया। And I told you, when you pray for your desires, you have a problems, mountain-like problems in your life. जब मैं आपको बोल रहा हूं आशाओं के लिए रख के प्रार्थना करिए बोल के, लेकिन आपको वहां पे एक पहाड़ के जैसे समस्या रहता है। Everybody will have one problem. हर एक को एक समस्या रहता है। It becomes so big. वो बहुत ही बड़ा दिखता है। It doesn't allow you to concentrate on anything else other than that problem. वो समस्या को छोड़ के आपको किसी तरफ भी ध्यान देना बोलकर वो नहीं देता है। You आपको have to move that mountain. आपको वो पहाड़ को वहां से हटाना है। How to move the mountain? कैसा वो पहाड़ को हटाना है I'll teach. मैं उसका बोधना करता हूँ। Every week I'll teach. मैं सिखाता हूँ हर हफ्ता वो। Hallelujah. Hallelujah. Now what is you should do is आपको क्या करना है कि write the goal. वो लक्ष्य को लिखिए, Your desires. आपकी आशाएं को, Pray for your desire. आपकी आशाएं के लिए प्रार्थना करिए। How to pray? कैसा प्रार्थना करना 3 चाहिए? steps I told you. 3 वहां पे अंश को वहां कदम को मैं सिखाया था। Say it, बोलिए, believe it, विश्वास करिए and receive it. और आप उसको पा लीजिए। Sorry. Say, I will say it, I will believe it, I will receive it. मैं कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं और मैं पा लेता हूं। Now, especially about family, we have to set some goals. विशेष तरीके से पारिवारिक के लिए हम लोग वहां पे लक्ष्य को रखना है। Our family should be a godly family. हमारा परिवार एक खुदा का परिवार दिखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। One of the qualification to serve the Lord is you should know how to rule your own house. एक वहां पे बुलाहट ये है कि आप ये जानना चाहिए कि आपका परिवार को कैसा चलाना वो आप जानना चाहिए। 1 Timothy 3rd chapter, पहला तीमुथियुस 3रा अध्याय verse 4 and 5. Sorry, 1 Timothy 3rd chapter, verse 4 and 5. पहला तीमुथियुस 3रा अध्याय 4 और 5 वचन। One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For a man, if not know how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? पहला तीमुथियुस 3रा अध्याय 4 और 5 वचन। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसा करेगा? Here Bible says who should serve the Lord? यहाँ पे बाइबल कहता है कौन
प्रभु का सेवकाई करता है। Paul was preaching gospel everywhere. पौलुस ने हर तरफ वहाँ पे सुवार्ता सुसमाचार सुना रहा है। Big churches were started. बड़ा वहाँ पे कलीसिया शुरुआत हो चुका So है। he is writing letter to Timothy. Who should be an elder in the church? Who should be a bishop? Who should be a overseer? और वो तिमुथियुस को लिख रहा है कि कलीसिया में कौन वहाँ पे बड़ा रहना चाहिए, जो बिशप रहना चाहिए, और कौन वो व्यक्ति उसको है बोलकर वो सिखा रहा है। The basic quality needed is एक प्रारंभिक गुण ये चाहिए कि if man has to serve the Lord, first he should know how to rule his own house. जो व्यक्ति सेवकाई करना चाहता है तो प्रारंभिक अंश ये है कि वो उसका परिवार को कैसा चलाना। He should make sure his children at least listen to him. कम से कम उनके बच्चे लोग तो उनका सुनने का रहना चाहिए। And if a man doesn't know how to rule his own house, how can he take care of the church of God? और ये व्यक्ति अपना एक परिवार को कैसा चलाना चाहिए बोलकर वो नहीं जानता है तो परमेश्वर की कलीसिया को कैसा चला सकता है। That's why we give more importance for families. इसीलिए हम बहुत ही मुख्य पारिवारिक को देते हैं। And we give at least once in a month I teach on family. तो इसीलिए मैं महीने में एक बार तो मैं पारिवारिक के लिए मैं बोधना करता हूँ। Next week again evening I'll call all the couples, come there, I'll teach about family. Next week evening. आने वाला हफ्ता शाम में मैं फिर से जो शादीशुदा हुए लोग हैं उनको बुलाता हूँ कैसा आप पारिवारिक में ये करना है बोल Now के। what goals I should keep for my family? और मेरे परिवार के लिए मैं क्या लक्ष्य लिखना है। Acts 16:31. प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 31वां वचन। Acts 16:31. And they said, believe on the Lord Jesus, thou shalt be saved and thy house. प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 31वां वचन। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Say English. I believe on Lord Jesus. Me and my household will be saved. मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करता हूं, मैं और मेरा घराना उद्धार पाता है। Believe. I believe. Okay. Say all of you lift your hands. I believe in Lord Jesus. Myself and all my family members will be saved. मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता हूं, मैं मेरे घराना सारे लोग उद्धार पाते हैं। Write it. वो लिखिए, Every day say it. हर दिन उसको बोली कहिए Believe it. और विश्वास करिए Receive it. और पा लीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Say I will say it. I will believe it. I will receive it. मैं कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं और मैं पा लेता हूं। What you will say? आप क्या कहते हैं? Say one more time. I believe in Lord Jesus Christ. All my family members will be saved. मैं प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखता हूं, मेरे सारे घराने उद्धार में आते हैं। Earlier I used to pray only for salvation. सब समय तक कि मैं खाली उद्धार के लिए प्रार्थना My करता था। people should be saved. My people should be saved. My people should be saved. मेरे लोग वहाँ पे उद्धार पाना चाहिए, मेरे लोग उद्धार पाना चाहिए बोल By के। God's grace, I led my grandmother, my mother to Jesus. और प्रभु की अनुग्रह के द्वारा मेरा दादी माँ को और मेरा माँ को मैं प्रभु के अंदर My चलाया। cousin accepted Jesus. मेरे जो कजिन्स वो लोग यीशु मसीह को अपना लिए। They are all born again. She's born again, tongue talking now. अभी वो प्रभु में नया जन्म पा के वो अन्य भाषा में बात करती है। Only salvation is not enough. खाली उद्धारी वो काफी नहीं है। Tell your neighbor, only salvation is not enough. बाजू वालों को बोलिए खाली उद्धारी काफी नहीं है। I decided now. अभी मैं निर्धार कर ले चुका हूँ, I will serve God with my family.
मैं निर्धार कर ले चुका हूं कि मैं पारिवारिक होके मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा। Write down the quotation. Don't turn your Bible. We don't have time. Write Joshua 24:15. और कोटेशन को लिख सकते हैं Joshua 24 verse 15. यहोशुआ का 24वां अध्याय 15वां वचन। Write it. Just write it. आप ऐसे ही लिख ले Say सकते after me. हैं। As far as me and my family, we will serve the Lord. मैं मेरा घराना सारे लोग सेवकाई करते हैं। One more time. Happily, joyfully lift your hand and खुशी से say, आनंद as से far as बोलिए। me and my family, we will serve the Lord. मैं मेरे घराने सारे लोग प्रभु की सेवकाई करेंगे। You know, if you are worried about your children's salvation, I tell you, अगर आप आपके बच्चों लोगों का उद्धार के लिए आप चिंता कर रहे तो मैं आपको बोलता हूं these two scriptures, ये दो वचन keep saying it, keep saying it, keep saying it. आप कहते ही रहिए, कहते ही रहिए, कहते ही रहिए Keep on believing it. और उसके ऊपर विश्वास करते ही You रहिए। will see with your eyes. आपकी आंखों से आप देखते हैं All your children will be born again and baptized with the Holy Spirit. They will serve Lord Jesus with you. सारे आपके बच्चे लोग वो यीशु मसीह के अंदर नया जन्म पा लेके वो बपतिस्मा लेके वो प्रभु का सेवकाई करने का आपके आंख से आप देखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. I am not saying you leave your job and come and ministry. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका काम को छोड़ के आप सेवकाई में आओ बोलकर नहीं कह You रहा should हूं। work. आपको काम करना You है should study. और आपको पढ़ना है, You do your business. आपका व्यापार को आप करना है, But something you can do for the Lord. परंतु प्रभु के लिए आप कुछ तो करना है। So in that column, ministry is written. वो कॉलम में सेवकाई बोलकर लिखा गया है। Hallelujah. हालेलुया। You know, you can have your house, buy gold, have a big degree, everything wonderful. But this ministry, what you do will have an eternal value. आपको वहां पे सोना खरीदना है, घर ये करना है, लेकिन ये सेवकाई जो हम करते हैं ये अनंत काल के लिए है। And you know, when your family is involved in ministry, you know, your family is more focused on God. कब आपका परिवार जब सेवकाई में वो रहते हैं तो उनका दृष्टिकोण उनके मन में प्रभु का ही रहता है, सेवकाई रहता है। Even your children will not get distracted like other children. और आपके बच्चे लोग दूसरे बच्चों लोगों के जैसा उधर इधर फिरते नहीं, उधर इधर जाते नहीं। Why? क्यों? God says, I'll make a difference between those who serve me, those who don't serve me. क्योंकि खुदा ने कहा है जो मेरा सेवकाई करते हैं और जो नहीं करते उसमें मैं अलग अलग रखता हूं बोल के। Hallelujah. Hallelujah. That is why we should be involved in the ministry. इसके लिए हम सेवकाई में भागी रहना You है। know, when I say involved, I'm not talking about the help what you do. जब मैं भागी रहना है बोलने के बाद जो मुझे तुम सहायता ये कर रहे हैं उसके बारे में The नहीं। help what you do helps you to identify what is gift inside, talent inside. आप ये सहायता अपने आप को कर लीजिए कि आपके अंदर क्या वहां पे वरदान है, तलांत है, वो बाहर दिखने में। Hallelujah. हालेलुया। And this promise, और ये वायदा as far as 2 Thessalonians 3:3 is concerned, और ये दूसरा थिस्सलुनीक तीसरा अध्याय तीसरा वचन को संबंधित रहते हुए ये why it is written? क्यों वो लिखा गया है That's very important. For whom it is written? और किन लोगों के लिए लिखा है। Come with me to 2 Thessalonians, दूसरा थिस्सलुनीक again 3rd chapter. फिर से तीसरा अध्याय We'll read verse 1 and 2. पहला और दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। Verse 1 and 2. पहला और दूसरा वचन। Finally, brethren, pray for us, the word of the Lord may have a free course and be glorified, even as it is with you, that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। You know,
Paul is telling, please pray. We should go preach the gospel to many places where people are not receiving it. और पौलुस ने कह रहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हम सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, कई लोग वहां पे नहीं सुन रहे बोल के। How the word of God is growing in you, like that many places word of God should grow. कैसा परमेश्वर का वचन आपके अंदर बढ़ रहा है, उन लोगों के अंदर भी बढ़ना बोलकर प्रार्थना करो So बोलकर बोल he रहा है। told them to pray. वो प्रार्थना करो बोलकर बोल रहा है, Then he gave the promise. उसके बाद वो वायदा को दे रहा है। But God is faithful, who will establish you, will protect you from all evil one. परंतु परमेश्वर वो विश्वास योग्य है, वो दृढ़ता से स्थिर करेगा और वो दुष्ट से आपको सुरक्षित रखेगा बोल के। So one ministry all can do. एक सेवकाई सब लोग कर सकते हैं। No need to get out of your house. आप से आपके घर को छोड़ के आप बाहर भी नहीं जा सकते। Sitting in your house you can pray. आप घर में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, Yes or no? है क्या नहीं? Hallelujah. हालेलुया। Pray where the gospel is not reached, it should be reached. प्रार्थना करिए कहां पे सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पे सुसमाचार पहुंचना बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Pray where there is no church, church should be planted. और प्रार्थना करिए ये कि जहां कहीं पे भी कलीसिया नहीं है वहां पे कलीसिया होने के लिए। Why we should pray for a church? क्यों हम लोग चर्च के लिए प्रार्थना करना चाहिए? If you read Matthew 9th chapter, अगर आप मत्ती का 9वां अध्याय पढ़ाए तो Jesus saw the multitude. यीशु मसीह ने भीड़ को देखा He was moved out with compassion. और वो करुणा से वहां पे चलता है। So many people, बहुत सारे लोग, they are like a sheep without a shepherd. वो लोगों को चरवा नहीं है वैसा वो लोग वो भेड़ है बोलकर They बोलता are है। scattered. They are fainted. और वो इधर इधर भटके हुए हैं और वो लोग निर्बल हो चुके हैं There is बोल के। nobody to feed them. उनको खिलाने के लिए कोई भी नहीं है Nobody to protect them by prayer. और प्रार्थना के द्वारा उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई भी नहीं है There is no pastor for them. और उनके लिए कौन सा पास्टर नहीं है। God says pray. खुदा कहते हैं प्रार्थना करिए। What we should pray? हम क्या प्रार्थना करना है? Come with me to Matthew 9th chapter, मत्ती का 9वीं अध्याय की ओर आप आइए। verse 37 and 38. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of harvest that he will send forth laborers into his harvest. मत्ती के 9वां अध्याय 37 और 38वां वचन। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत की स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। Hallelujah. हालेलुया। Harvest is plenty, laborers are few. उन्होंने कह रहा है कि खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है बोल के। People are ready to accept Jesus. वहां पे लोग यीशु मसीह को अपना लेने में वो तैयार है, सिद्ध है। Laborers are few. लोग वहां पे काम करने वाले कम है, मजदूर कम है। Pray. प्रार्थना करिए। What you should pray? हम क्या प्रार्थना करना Tell है? at me, I will pray. The Lord of harvest, send the laborers to your vineyard. मैं खुदा से प्रार्थना करता हूं, खेत के स्वामी से विनती करता हूं कि खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। Is it simple prayer? Very difficult. ये आसान का प्रार्थना है क्या बहुत ही कष्ट का प्रार्थना है? Very simple. बहुत ही आसान है। This we all can do. ये सब हम कर सकते हैं, Yes or no? है क्या नहीं? Pray. God, send your laborers to your vineyard. प्रभु को प्रार्थना करे, प्रभु तेरा खेत के लिए मजदूरों को भेज दे। You know, when you and include this prayer in your family prayer. और ये आपकी पारिवारिक प्रार्थना में ये रख लीजिए। Hallelujah. You हालेलुया। know, when you pray as a family, कब आप पारिवारिक होकर प्रार्थना करते your हैं, children get habituated. They also pray. आपके बच्चों लोगों को भी ये आदत होता है और वो भी ये प्रार्थना करना शुरुआत करते हैं। Amen. आमीन। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Yes, no, yes, no. है क्या नहीं? For those who pray unreached, should be reached. For them, Paul is telling, God is faithful, who will establish you, who will protect you from the evil one. जो सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पे पहुंचना है बोलकर जो प्रार्थना कर रहे हैं,
तो उनको बोल रहा है उस वैसा प्रार्थना करना के लिए, और वो कह रहा है वो विश्वास योग्य है, वो दृढ़ता से स्थिर करेगा बोल के दुष्ट से सुरक्षित रखने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। In our church, हमारे कलीसिया में I believe मैं विश्वास करता हूँ every family should pray at least for one village. हर एक परिवार कम से कम एक गांव खेड़े गांव के लिए प्रार्थना करना चाहिए। Every family should pray. I told them, in 2 years, 3 years back, adopt one village. हर एक फैमिली प्रार्थना करना है। मैं बहुत साल पहले पीछे मैं कहा था कि एक एक परिवार एक एक खेड़े गांव को गोद लेना है। I am not telling leave everything, go with the Bible to preach gospel there. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ के बाइबल लेके जाइए बोलकर मैं नहीं कह रहा हूँ। At least one village. कम से कम एक गांव तो। In my lifetime, I will pray. I'll make sure the church is planted. Work will start. कम से कम मेरा जीवन में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये रखता हूँ कि एक खेड़े गांव में वहां पे कलीसिया शुरुआत होना, वहां पे स्थिरता से रहना बोल के मेरा जीवन में वो होना बोलकर मैं ये करता हूँ। Every day I pray for my one village. हर दिन मैं हर एक विलेज My village name is Dharmapur. मेरा गांव का नाम है धर्मापुर। You ask my wife, you ask my children, everybody knows. Every day we pray. Father, I pray for that village Dharmapur. Send the laborers to a vineyard. Let the gospel be preached to them. Let people accept Jesus Christ as a savior. मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ और पत्नी को और बच्चों को पूछिए कि पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसा कि मेरा जो गांव है धर्मापुर, वहां पे जो खेत पके हैं वो खेत के स्वामी को मैं विनती करता हूँ कि आपके मजदूरों को भेज दे वहां पे बोल के। This is a right prayer for revival. उज्जीवन के लिए ये सही प्रार्थना है। What is a prayer? क्या प्रार्थना है? Pray, Lord of harvest will send the laborers. ऐसा प्रार्थना करें कि खेत के स्वामी को मजदूरों को भेज दे उसके काम के लिए। Let gospel be preached. और सुसमाचार सुनाए जाए बोल के। We pull down that strongholds in the name of Jesus. और सारे ऊंचे जो बांधे को वो हमको तोड़ डालते हैं। Let that blindness be removed in the name of Jesus. और उनके समझ की आँख को खोल दे बोल के। You pray like that. ऐसा प्रार्थना करिए। Even if without you getting out of your house, work will begin. ऐसा प्रार्थना करिए, आप घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, वहां पे काम होता रहता है। Hallelujah. हालेलुया। What are you here? आप यहाँ पे है। Why I am saying it? मैं क्यों कह रहा हूँ? I prayed. मैं प्रार्थना किया And I saw one family from Dharmapur, full family accepting Jesus. मैं प्रार्थना की हूँ, मैं देखा हूँ कि एक धर्मापुर में एक परिवार यीशु मसीह को अपना लिया है बोल के। They said, hey, you are praying for that village. That is my village. और वो बोल रहे थे कि आप जो जिस गांव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो मेरा गांव बोल रहे थे। And every time when they go to the village, they only conduct prayer. और जब कभी भी मैं उनके घर पे वहां पे जाता हूँ तो when they go to their village, they conduct prayer. और उन्होंने प्रार्थना रखते हैं वहां पे। Hallelujah. Hallelujah. There is one man coming from there. और एक व्यक्ति वहां से आ रहा था। You know, technology has advanced so much. People are coming from village to city. Somehow, somewhere, the Lord will open there. You can preach gospel. You can disciple people. और टेक्नोलॉजी अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग वहां पे गांव से, खेड़े गांव से यहाँ पे शहर में आ रहे हैं और सुसमाचार आप कैसा तो भी करके आप सुना सकते हैं इस समय में। First pray. पहला प्रार्थना करिए। Tell your neighbor, first pray. बाजू वालों को बोलिए पहला प्रार्थना करिए। I'm telling you, right? 2022 village name. Pray in the name of Jesus. मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 2022 साल में वो विलेज का वो गांव का नाम लिखी है बोल के। You will see people will accept Jesus. Work will begin there. और लोग वहाँ पे यीशु मसीह को अपना लेना और काम का शुरुआत होना आप देखते हैं। Now listen. अभी सुनिए। Matthew 9 chapter, Jesus said, pray. मत्ती की 9वां अध्याय में यीशु मसीह बोला कि प्रार्थना करिए। First pray. पहला प्रार्थना करिए। All of you say first pray. पहला प्रार्थना करिए। Then Matthew 10th chapter, और मत्ती के 10वें अध्याय में Jesus said, go. यीशु मसीह बोल रहा है जाओ बोल के। Hello? Go as a family. पारिवारिक होके जाइए। You know, there are some families, कई परिवार है, they went to village. वो लोग गांव को गए हैं। Nobody tell them get out. कोई भी नहीं कहा वहां पे यहाँ से निकलिए। The village people are like, come.
वो लोग बोल रहे आ जाइए। We went and had a gospel meeting हम जाके वहाँ पे सुसमाचार का एक वहाँ पे मीटिंग भी in रखी 20 villages. 20 गांव में। Nobody says don't come. कोई भी नहीं कहे मत आइए बोलकर, They are telling come again. वो लोग फिर से आइए बोलकर कह रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Pray. प्रार्थना करिए Go. और जाइए। Now very important. अभी मुख्य है, Going comes later. Okay, don't worry about it. जाना बाद में आता है, उसके बारे में चिंता मत करिए। When you pray, what you should pray. कब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना कर You रहा know, है? not only you pray for the unreached, खाली आप जहाँ पे नहीं पहुंचा है you उसके are लिए प्रार्थना नहीं करना praying for चाहिए। the laborers to go. आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मजदूर जाने के लिए। No, you know, the day will come. You may be a laborer. Your neighbor may be a laborer. दिन आता है, शायद आप ही वो मजदूर हो सकते हैं, आपके बाजू लोग मजदूर हो Or सकते हैं, maybe your son, maybe your daughter. शायद आपका बेटा या बेटी हो सकते हैं। So it is so important. We should pray for the ministers of God. इसीलिए बहुत ही मुख्य है, जो खुदा का प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं उन सेवकों के लिए प्रार्थना करना। How many laborers are there? कितना मजदूर है? Few or many? थोड़े हैं क्या बहुत है? Hello, are you here? आप यहाँ पे हैं? Are they few or many? वो कम है क्या बहुत है? Already they are few. पहले वो लोग कम है, We have to pray. हम प्रार्थना करना है। Even if this few, if they are affected, if they have a problem, even the work what they are doing they will not do. ये कम लोग रहते हुए भी ये कम लोग कौन सा भी समस्या के अंदर अटके गए तो जो काम होने वाला है वो काम भी नहीं होता। We should pray for the men of God. परमेश्वर के लोगों के लिए हम प्रार्थना करना We चाहिए। should pray for the disciples. हम लोग चेले लोगों के लिए प्रार्थना करना है, Very important. बहुत ही मुख्य है। What we should pray. क्या प्रार्थना करना है? Hallelujah. Hallelujah. First pray unreached places, gospel should reach. पहला ये प्रार्थना करिए कि जहां पे सुसमाचार नहीं सुनाया गया वहां पे सुसमाचार सुनना At चाहिए least बोल के। pray for one village. कम से कम एक खेड़े गांव के लिए तो प्रार्थना Pray करिए, for the laborers to go. और मजदूर जाने के लिए प्रार्थना करिए। What to pray for laborers? और मजदूरों के लिए क्या प्रार्थना करना है? Three things. 3 विषय। Come with me to John 17 quickly. यूहन्ना की और 17वें अध्याय की ओर आप आइए। John 17. यूहन्ना का 17वें अध्याय, John 17 verse 17. 17वां अध्याय 17वां वचन। John 17 verse 17. John 17 is a prayer Jesus made for his disciples. यूहन्ना का 17वां अध्याय यीशु मसीह उनके चेलों के लिए प्रार्थना किया है। Hallelujah. Are you here? आप यहाँ पे हैं? Now my question, are you a believer or you a disciple? आप विश्वासी लोग हैं क्या आप चेले लोग हैं? If you believe in Jesus, you are come, you are a believer. अगर आप यीशु मसीह को विश्वास किए आप आए तो आप विश्वासी है, But a believer should become disciple. लेकिन विश्वासी वो चेले होना चाहिए। You know how a believer becomes a disciple? कैसा विश्वासी चेले होता है? By receiving God's word. खुदा के वचन प्राप्त करने में। Simple word, and I'm telling you, attend a Bible school. साधन का एक बात में मैं कहता हूँ, बाइबल स्कूल को हाजिर हो जाइए। Till now you are not attended. अब तक आप हाजिर नहीं हुए तो Write your goal statement. आपका जो लक्ष्य का स्टेट This- बोलना में लिखिए। This year, ये साल में I will finish spirit, soul and body. मैं आत्मा प्राण शरीर को खत्म करता हूँ, I will finish course number 2, don't limit God. और कोर्स नंबर 2 का डोंट लिमिट गॉड वो खत्म करता I हूँ। will finish believer's authority. मैं विश्वासी का अधिकार मैं खत्म करता I हूँ। will attend school of evangelism. मैं सुवार्ती का उसका मैं हाजिर होता हूँ, I will attend church planters training. और मैं जो कलीसिया कैसा वहाँ पे स्थापन कर रहा हूँ उसमें मैं भागी You होता हूँ। attend all these things, you become a disciple. ये सारे विषयों को आप लिखिए, आप चेले हो जाते Now हैं। what to pray for disciples? और चेले लोगों के लिए क्या प्रार्थना करना है?
John 17:17. और यूहन्ना का 17वां अध्याय 17वां वचन में Jesus said, "Sanctify them through thy truth, and thy word is truth." सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Pray for their holiness. उनके पवित्रता के लिए प्रार्थना करिए। Say, I will pray for their holiness. मैं प्रार्थना करता हूँ उनके पवित्रता के लिए। How many laborers we have? कितने मजदूर हैं? Few or more? कम है क्या बहुत है? Show your hand. आपके हाथ दिखाइए। Very few. बहुत ही कम है। Out of this few, if somebody falls, it will be a tragedy. ये कमी लोगों में कोई तो गिर गए ना, वो बहुत ही दुख है, दुख की बात Somebody है। falls in sin, it will be tragedy. कोई तो पाप में गिरा ना, वो बहुत ही दुख की बात है। If somebody falls in sin, अगर कोई तो पाप में गिर पड़े तो the one reason is एक कारण ये है, we have not prayed for them. हम उनके लिए प्रार्थना नहीं We की। should pray like Jesus. हम यीशु मसीह के जैसा प्रार्थना करना Pray चाहिए। for their holiness. उनके पवित्रता के लिए प्रार्थना Pray करिए। God open their eyes of understanding. प्रार्थना करिए कि खुदा उनके समझ की आंखों को खोल दे। They will live a holy life. वो लोग पवित्र जीवन बिताते They हैं will have victory over temptation. और शोधना के ऊपर वो लोग जय प्राप्त कर लेते हैं बोल के। Okay, one more prayer point. और एक प्रार्थना अंश John 17:21. और 17वां अध्याय यूहन्ना का 21वां वचन। That they all may be one, as thou, Father, art in me, I in thee, that they also may be one in us, that the world might believe that thou hast sent me. वही इसमें 21वां वचन कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसा ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। You know, now the world should believe Jesus. अभी संसार यीशु मसीह को विश्वास करना है। Yes or no? है क्या नहीं? World should believe Jesus. संसार यीशु मसीह को विश्वास करना है। How they will believe Jesus? कैसे वो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? When they see oneness among us. हमारे अंदर कब एकता रहता है तभी। Hallelujah. हालेलुया। Pray for the holiness. पवित्रता के लिए प्रार्थना करिए। Pray for the oneness. एकता, उनके अंदर एकता रहना बोलकर प्रार्थना करिए। Pray, I'm telling you, you go for a village ministry, you do so many things. The oneness in heart is there. You will see the power of God and glory of God. आप देखिए, जहाँ कहीं भी आप गांव की सेवकाई के लिए जाते हैं तो सब लोग मिलके एक ही दिल वाले, एक ही हृदय वाले बने, वो लोग रहे ना, वहाँ पे आप खुदा की शक्ति और महिमा को आप देखते हैं। You know, I think 10 years or 15 years back it happened. 10 या 15 साल पहले ये हुआ था। There are some brothers who came कई after Monday outreach. और सोमवार की गांव की सेवकाई के होने के बाद कई ब्रदर मेरे पास आए। That day Vinod was not there, Raju was not there, some people went. उस दिन में भाई विनोद नहीं था और मैं नहीं था, लड़के लोग गए थे And they came back और वो वापस आए fully discouraged. बहुत ही निराश से आए। I said, what happened? मैं बोला उनको क्या हो गया? We had people send us back. लोग हमें वापस भेज दिए। What happened? क्या हो गया? You know, before they sent us back, we only fought with ourselves. वहाँ हम वो लोग भेजने से पहले हमारे अंदर ही हम लोग ही एक दूसरे से झगड़ा कर We लिए। argued why you did this, why you did this, why you did this. People came and sent us back. और वो हमारे अंदर ही हम वाद विवाद करे, तू ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्या ऐसा किया, वो लोग ये देख के हमको भेज दे बोलकर बोले। So what is the solution? इसका सुलझाव क्या है, परिहार क्या है? We should not fight among ourselves. They are only telling we should not fight among ourselves. और वो हम में वही जान ले कि हम लोग हम में झगड़ा नहीं करना है, I tell you, if we are one, we can do great things for God. कब हम एक होते हैं तो हम खुदा के लिए काम बड़े काम कर सकते हैं। Let me tell you one story. एक कथा मैं आपको बोलता हूँ, Listen carefully. ध्यान से सुनिए। You know, in African countries, they have this corn plants. They grow very tall. और अफ्रीकन देश में ये कॉर्न का Corn भी भुट्टा मैं कहते नहीं हाँ भुट्टा Say Kannada, no problem. मैं कहते नहीं भुट्टा। They grow very tall.
और वो बहुत बढ़ता है, ऊंचा बढ़ता है। These children were flying kites outside. ये बच्चे लोग बाहर वो पतंग खेलते रहते हैं, And one fly went inside. और एक पतंग उसके बीच में जाता है। One small boy went inside that corn, bush, the plants. और एक लड़का ये जो बुट्टा का जो ऊपर है ना, उसके अंदर ये छोटा लड़का जाता है, वो पतंग पकड़ He लेने didn't come back. और वो वापस नहीं आता है। Then he called all the parents. और वो बाद में सारे माता पिता His friends went and told, hey, my friend Vincent, he has not come back. Come, let's search. उसका दोस्त आके बोलता है कि मेरा दोस्त अंदर गया है, वापस नहीं आया है, सब लोगों को बुलाकर उनको ढूंढेंगे बोलकर वो कहता है। Everybody searched, they didn't get the boy. सब लोग उस लड़के के लिए ढूंढते हैं, वो लड़का मिलता ही नहीं। He got stuck up somewhere. वो कहाँ तो भी अटका रहता है। He is unable to get up. वो उठने के लिए उसको नहीं हो रहा है। They all searched. वो सब लोग ढूंढे, They didn't get. लेकिन उसको नहीं मिला। They were so tired. वो बहुत थके हुए थे। Then the one old man said, उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, I know how to get the boy. वो लड़का को कैसा पाले ना मुझे पता है। You all went and searched. आप सब लोग जाके ढूंढे, Instead of that, you all hold hand and go together. उसके बदल में आप सभी लोग एक दूसरे से हाथ पकड़ के वो अंदर जाइए। Form a circle. वो एक वहां पे सर्कल बनाइए, Go inside. और अंदर जाइए। When they went like that, they got him. कब वो लोग ऐसा अंदर जाने के बाद वो लड़का मिला। When they caught him, he was dead. जब वो मिला था वो मरा हुआ था। When they took him to the hospital, कब उसको अस्पताल में लेके जाने के they बाद said 15 minutes before he passed away. वो उन्होंने वहां पे बोला 15 मिनट पहला ही ये बच्चा मरा बोल के। Did they try वो to लोग save him? वो लोग प्रयत्न किया क्या नहीं To save him? उसको बचाने के लिए, But they couldn't. लेकिन उनसे नहीं हुआ, Because they did alone. क्योंकि वो अपने अकेले में वो किए। When they joined their hands, कब वो हाथों को अगर पकड़े हुए तो, it was too late. लेकिन वो बहुत देर हुआ था। My friends, मेरे दोस्तों, one statistics shows एक वहां पे लेखा वहां पे बताता है per day 40,000 people die in India. हर दिन 40,000 लोग मर रहे हैं भारत देश में। This is not today's statistics. ये आज का लेखा नहीं है, This few years back I saw it. कई साल पीछे मैं देखा था वो है। 40,000 people die. 40,000 लोग मर रहे हैं। How many go to heaven? How many go to hell? We don't know. कितने लोग स्वर्ग को जा रहे हैं, कितने लोग नरक को जा रहे हैं, हमें पता नहीं है। But one thing is sure. लेकिन एक विषय पक्का है, If we all unite our hands, हम सब लोग हमारा हाथ पकड़ लिए तो, unite our hearts, हमारा हृदय एक कर लिए तो, pray प्रार्थना करना है and attempt, और जाके करिए, we can save lives. आप जीवन को आप बचाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Pray for their holiness. पवित्रता के लिए प्रार्थना करिए, Pray for their oneness. एकता के लिए प्रार्थना करिए, Pray for their protection. उनकी सुरक्षित के लिए प्रार्थना करिए। Verse 15. 15वें वचन में, I pray not that thou should take them out of the world, but thou should keep them from the evil. मैं ये विनंती नहीं करता कि तू उन्हें जगत में से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। Jesus prayed for the disciples' protection. यीशु मसीह चेले लोगों का सुरक्षित के लिए प्रार्थना करता You है। should pray. You should pray for the disciples. You pray for the pastors, ministers, anybody. Whether you don't know, whether you see, if you know them, pray. God should protect them. आप जो चेले लोग रहने दो या पास्टर्स रहने दो, जो कोई भी जो सेवकाई कर रहा है, जो आप जानते हैं, उनकी सुरक्षित के लिए आप प्रार्थना करिए। You should pray for the travel. और उनका जो यात्रा के लिए प्रार्थना करिए। 2 Corinthians 11th chapter verse 25. दूसरा कुरिन्ती 11वीं अध्याय 25वां वचन। Here it talks about how when Paul traveled, what happened.
यहाँ पे पौलुस ने जब यात्रा किया उसको क्या हुआ बोलकर लिखा गया है। You know, verse 25 and 26. 25 और 26 वचन। Thrice I was beaten with rods, once I was stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep, in the journeyings often, in the perils of water, in the perils of robbers, in the perils of my own countrymen, in the perils by the heathen, in the perils in the city, in the perils in the wilderness, in the perils in the sea, in the perils among false brethren. 25 और 26 वचन। 3 बार मैंने बोते खाई, एक बार मुझ पर पथरवा किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, एक रात दिन मैंने समुद्र में घटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा। You know, what all problems Paul is having? पौलुस को क्या क्या वहां पे समस्या था। Beaten by the robbers, और डाकुओं के यानी चोर करने वालों के साथ वो लोग मारे थे पौलुस को। shipwreck 3 times. जहाज 3 बार टूटा था। Day and night he was in water. दिन रात वो पानी में था। Hallelujah. हालेलुया। You know, I am not magnifying the devil, मैं शैतान को ऐसा है बोलकर नहीं बोल रहा हूं, but we have to pray. लेकिन हमको प्रार्थना करना है। I pray for all the men of God, मैं सारे परमेश्वर के पासवानों के लिए मैं प्रार्थना especially करता हूं। if I know somebody is traveling, विशेष तौर पे कोई तो यात्रा कर रहा है तो I will pray. मैं प्रार्थना करता हूं। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं। Pray for the holiness. पवित्रता के लिए प्रार्थना करिए। Pray for their oneness. एकता के लिए प्रार्थना करें Pray उनका, for the protection. और उनका सुरक्षित के लिए प्रार्थना For करिए। this, no need for you to go out. और इन चीजों के लिए आप बाहर जाने का जरूरत नहीं You है। can sit in the room and pray. आप रूम में कमरे में बैठ के प्रार्थना कर At सकते हैं। least take one village name लेकिन कम से कम एक गांव का नाम तो where लीजिए there is no church. जहां पे चर्च नहीं है वो उसका Pray. उसके लिए प्रार्थना Until you करिए। pray, some evangelists go, some pastors go, something will happen. Pray. प्रार्थना करिए। कोई तो एक व्यक्ति वहां पे एक सुवार्तिक बोलने वाला एक पास्टर वो कोई तो वहां पे वो गांव में जाने के You लिए know, all your blessings, you will get it. सारा आपके आशीष है आप पा लेते हैं। But what you do for kingdom of God, not only you'll get it here, it will follow you to the heaven. जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो आप करते हैं इधर ही आप नहीं प्राप्त कर लेते हैं, कब आप स्वर्ग को जाते हैं तो आप वो प्राप्त कर लेते हैं। This is not option. ये चुनना है बोलकर नहीं है। I know you all will write goals. My life you will write, I am sure. मुझे पक्का यकीन है कि मेरा गोल मेरा व्यक्तिगत जीवन के लिए लिखना है, आप लिखते You हैं। will write goals for family, I am sure. ये भी मुझे पक्का यकीन है कि आपके परिवार के लिए आप लक्ष्य को लिखते हैं। I know you will write for your career, business, you will write sure. मुझे ये पता है आपका करियर के लिए आपके व्यापार के लिए ये पक्का यकीन है कि आप लिखते हैं। But ministry, don't leave it blank. लेकिन सेवकाई में खाली जगह मत रखिए। At least write one village name. कम से कम एक गांव तो लिखिए। Write, I will pray for the ministers of God. आप वहां पे लिखिए मैं परमेश्वर की सेवकाई करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता I हूं। will pray for the disciples. मैं चेले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। What we should pray? क्या प्रार्थना करना है? 3 things. 3 विषय। Oneness, holiness, protection. एकता, पवित्रता और सुरक्षित। Is it easy or difficult? ये आसान है क्या कष्ट है? I'll tell you, why I am saying this. मैं क्यों कह रहा हूं? If you do it, अगर आप ये करें तो your children will do. आपके बच्चे लोग भी करते हैं। When you sleep, कब आप सोते हैं तो you will have some satisfaction. आपको एक तृप्त रहता है I अंदर। have done something for my God. मेरे खुदा के लिए मैं कुछ तो किया हूं। Hallelujah. हालेलुया। Something for kingdom of God. कुछ तो खुदा के राज के लिए। I have done it. I tell you, even if you don't preach, no problem. At least pray. आप वहां पे प्रसंग नहीं करते हैं तो भी कम से कम आप प्रार्थना करिए। Hallelujah. हालेलुया। Something for God. कुछ तो खुदा के लिए Daily we should attempt. हर दिन वो करिए।
If you tell gospel, it is wonderful. अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं तो वो बहुत ही If अद्भुत you है। give tracts, wonderful. अगर आप ट्रैक्स वो करपत्र देते हैं तो वो भी अद्भुत है। If that is a goal, right? Daily I'll give one tract. You write it, you will give. अगर आप वो आपका लक्ष्य रखना है तो आप लिखिए, मैं हर दिन मैं वो करपत्र को देता हूँ बोल के। You know, when the vision is there, even your children will be more focused. They'll be very busy in the vision. कब वहां पे दर्शन है तो आपके बच्चों लोग भी उसके अंदर ही दृष्टि डाल के व्यस्त रहते They हैं। will not be like other children. दूसरे बच्चों लोगों के जैसे वो लोग नहीं रहते They'll be हैं। very focused on the God and the vision what you have. वो लोग बहुत ही खुदा के ऊपर जो दर्शन आप उनको दिए हैं उसके ऊपर बहुत ही दृष्टि डाल के रखते हैं वो लोग। When my daughter went to Mangalore, कब मेरी बेटी जब वो मंगलूर को गई, I told her give gospel tracts. मैं उनको बोल दिया कि तुम जाके गॉस्पल सुसमाचार सुनाने के करपत्र को दीजिए। Sunday she goes to church. और वो रविवार वो कलीसिया को जाती है। And said just give to the auto driver. वो खाली एक ऑटो एक चलाता है उसको देती है। As soon as she comes out on auto stand is there, she will give. Every week she will give. जब कभी भी वो चर्च से बाहर आती है तो वहाँ पे ऑटो चलाने वाला रहता है, उसको जाके वो देती है, हर दिन वो People करती है। used to tell, hey, in Mangalore you can't do this. वहाँ पे मंगलूर में लोग कहते हैं कि मंगलूर में आप ये नहीं कर सकते। Till now nothing happened to her. अब तक उसको कुछ भी नहीं हुआ। Maybe once or twice people told, hey, you should not do it. शायद हो सकता है एक या दो बार लोग बोले होंगे उसके, नहीं ये तुम नहीं करना है। When you are focused in the kingdom, your children will live a holy life. कब आप ये राज्य के लिए आप दृष्टि डालते हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए आपके बच्चे लोग पवित्रता जीवन जीते हैं। When you are praying for the disciples or ministers of God holiness, in that your child also comes. जब कब आप जो परमेश्वर के सेवकों लोगों के लिए पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं ना, उसके अंदर आपके बच्चे लोग भी When रहते you हैं। pray for the men of God or the disciples protection, that your child's protection also comes. कब आप जो सेवकाई करते हैं उनके लिए जब प्रार्थना करते समय में उनके सुरक्षित के लिए जो करते हैं ना, आपके बच्चे भी उसके सुरक्षित में आते When you हैं। pray for the men of God's oneness and unity, your family oneness also comes. कब आप ये परमेश्वर के लोगों के लिए आप जब प्रार्थना करते हैं जो एकता के लिए, आपके परिवार में भी एकता के लिए होता है। Hallelujah. Hallelujah. I can't consider doing ministry without my family. It is not possible. और परिवार छोड़ के सेवकाई करना ये मैं नहीं मानता हूँ, It is not possible. वो हो ही नहीं सकता। There is no need to tell my son, tell my daughter. They are involved. They are part of me. वहाँ पे जरूरत ही नहीं है मेरा बेटा को बेटी को ये सेवकाई में भागी होने के लिए, वो होते ही है। Why? क्यों? Vision is there. क्योंकि दर्शन वहाँ पे I'll है। tell you, men, all the men listen to me. सारे पुरुष लोग मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनिए। Nothing will attract your wife other than the vision. आपके पत्नी को दर्शन छोड़ के कौन सा भी आकर्षित नहीं करता है। You want a wife to cooperate fully, have a vision. अगर आपके पत्नी आपको पूरी तरीके से सहयोग करना है तो आप दर्शन की ओर Something. रखिए, उसको दृष्टि करिए। If you think it is too much for me, अगर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है तो at least today, pray 2 prayers. कम से कम आज से 2 प्रार्थना तो करिए। Pray for one village. एक गांव के लिए प्रार्थना करिए Pray for the ministers of God. और परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो Say, सेव करते हैं उनके लिए I will प्रार्थना pray करिए। for one village. I will pray for all the ministers of God. मैं एक गांव के लिए प्रार्थना करता हूं जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। My responsibility, I gave the word. मेरा जिम्मेदारी मैं वचन दे दिया। One scripture I'll read and I'll close it. एक वचन मैं पढ़ के खत्म करता हूं। Romans 14:12. रोमियो का 14 अध्याय 12 वचन। All of you turn your Bible. सब लोग आपको बाइबल को फिराइए। So then, every one of us shall give account of himself to God. इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। Tell in Hindi, all of you, that will be good. Why you have to read? Tell in Hindi. मेरे पीछे हिंदी में बोलिए। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा।
Look here, don't read Bible, look here. अब बाइबल मत पढ़िए, इधर देखिए Look here, loudly lift your hand and say after him. और हाथ उठा के जोर से मेरे पीछे बोलिए। Look here, wait, all of you look here, don't reading यहाँ Bible. पे सब लोग यहाँ I पे want to देखिए, see your face, yeah. सब लोग यहाँ पे देखिए। Lift your hand and say it. इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। समझ गए ना? I am only helping you. मैं आपको खाली सहायता कर रहा हूं। Nobody can escape. कोई भी वहां से छुड़ा नहीं सकता है। You have to give account to God. आप खुदा को लेखा देना है। You have to give account. आप लेखा देना है। I am helping you to fix a goal. मैं आपको सहायता कर रहा हूं कि आप लक्ष्य रखिए Achieve the goal. और वो लक्ष्य को पहुंचिए। So when you give account to God, you will not be ashamed. कब आप खुदा को लेखा देते हैं तो आप वहां पे शर्मते नहीं। Hallelujah. हालेलुया। You know, it's not Christian life is just one religion. You carry Bible, you go Sunday morning, eat biryani and sleep. No. It's very serious business. We have to give account. मसीह का जीवन बोले तो ऐसा ही नहीं है हम हर रविवार आए तो बाइबल लेके चर्च में जाना और आके बिरयानी का ये खाना बोल के नहीं, ये मसीह का जीवन बहुत ही गंभीरता का जीवन है। Each हम one should लेखा give देना है। account. हर एक जने लेखा देना ही है। Hallelujah. हालेलुया।